Bismillahirrahmanirrahim. We are discussing and in electrochemistry chapter we are discussing about polarography. What is polarography? So it is a technique by which we estimate an unknown substance by plotting or drawing a graph between the current and potential. यानी ये सिंपली हमारी एक टेक्निक होती है जिसमें हम अपने किसी भी अननोन सब्सटेंस को जो है एस्टिमेट करते हैं. So it is a technique by which we estimate an unknown substance by plotting or drawing a parallelograph between the current and potential. We have already discussed its principle and different types of electrodes used in this technique: polarizable electrode, non-polarizable electrode. Here, dropping mercury electrode is the polarizable electrode. And what is polarizable electrode? Polarizable electrode means such electrode whose potential changes from the reversible value. Non-polarizable electrode जो है those electrodes whose potential remain constant, does not change from the reversible value. For example, हमारे पास जो standard Coulomb electrode है या saturated Coulomb electrode that is called non-polarizable electrode. So we have discussed different types of electrolytes used, reference electrolyte and electrolytic species, and today I am going to discuss about the polarogram, about the curve. हाँ, यानी हमारी जो कर्व आएगी करंट और पोटेंशियल के बीच में तो कैसी कर्व आएगी. तो टुडे विल डिस्कस अबाउट दिस पोलैरोग्राफ या दिस पोलैरोग्राम. So today our discussion topic is about the polarogram और पोलैरोग्राफ. अब हमारी जो कर्व आएगी करंट और पोटेंशियल के बीच में वो कैसी कर्व आएगी. So when the curve is plotted between the current and potential, it would be a sigmoidal curve, and this plot shows the current oscillation corresponding to the mercury drops falling from the mercury. So this is the polarograph या polarogram, and you can see this is the figure in which you can see this is current, and we have taken current in y-axis and potential या V is taken on x-axis. अब आप देखेंगे कि इसमें जो हमारी कर्व है वो किस तरह का है. अब यू कैन सी कि ऑलमोस्ट जो है स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट हमारा कांस्टेंट करंट शो हो रहा है. वोल्टेज इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है. यू कैन सी दिस वोल्टेज को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं. वोल्टेज इज इंक्रीजिंग बट करंट इज कांस्टेंट. लेकिन करंट हमारा जो कांस्टेंट है और जहां पर हमारा जो करंट ऑब्जर्व होता है दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल करंट एंड इज डिनोटेड बाय IR. फिर आप देखेंगे पॉइंट बी और सी आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बी sudden increase in current from point B and C. You can see ये जो सडन इंक्रीज इन करंट है ये शो कर रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है यानी जो Pb+2 का सोल्यूशन है इन डेपोजिशन ऑफ Pb+2 जो है दैट इज टेकिंग प्लेस. कि हमारा जो डेपोजिशन ऑफ Pb+2 है दैट इज टेकिंग प्लेस, और यहाँ से एकदम हमारा करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और ये जो है शार्प इंक्रीज हुआ है. इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये शार्प इंक्रीज हुआ है और ये एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पर पहुंचकर ऑलमोस्ट अगेन कांस्टेंट करंट आता है.
यानी इस पोटेंशियल पे पहुंचकर, सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पर पहुंचकर फिर अगेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट आ रहा है। यू कैन सी दिस इज पॉइंट सी एंड डी। और अब ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर्व हमें ये बताता है कि ये यहाँ पर हमारा जो Pb+2 है दैट इज कंप्लीटली डिपॉजिटेड, कि हमारा जो Pb+2 है दैट इज कंप्लीटली डिपॉजिटेड, यानी मींस सॉल्यूशन के अंदर अब हमारे पास कोई Pb+2 नहीं बचा। तो ये मेरी करंट की वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे IL, लिमिटिंग करंट। इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग करंट। और लिमिटिंग करंट को हमने शो किया है IL। अब दैट इज लिमिटिंग करंट। लिमिटिंग करंट और रेजिडुअल करंट के बीच में जो करंट आ रहा है दैट इज ID, that is diffusion current, that is the actual current which is measured by this polarography, and diffusion current। अब I, so IL is equal to IR plus ID। अब हमारी जो कर्व है इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे E हाफ। इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम बोलेंगे E हाफ। और ये E हाफ मेरा क्या होता है? E half क्या होता है? What is E half? This is the voltage at which deposition occurs। This is the voltage at which deposition occurs। यानी अब आप देख रहे हो कि इसने जो है ये B to C है दैट इज थोड़ा सा डिक्लाइंड है, टेढ़ा है, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है। B और C जो है इसने अब हमें जो है एक पूरी रेंज दी है, B to C इसने हमें पूरी रेंज दी है। कोई भी कैलकुलेशन करनी है उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो ई हाफ को मैं ये मानकर चलेंगे या ई हाफ को हम ये कहेंगे, ये हमारा वो पॉइंट है जिस पर हमारा जो Pb+2 है उसकी डिपॉजिट अकर करता है। मींस जहां पर डिपोजिशन इज अकरिंग, मीन ई हाफ जो है दिस इज द वोल्टेज एट विच डिपोजिशन अकर्स। अब हम देख रहे हैं भाई ये तो हमारी एक रेंज है भाई, दिस इज अ रेंज। मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये एक पूरी रेंज है बाय दिस इज अ रेंज। यानी इस रेंज को तो हम कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करेंगे, हमारी जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए हमें, क्या चाहिए? पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसकी हम मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। इसकी हम मिड पॉइंट लेंगे और इसको हम ई हाफ कहेंगे। और ई हाफ जो है फॉर डिफरेंट एटम्स, ई हाफ इज डिफरेंट, डिफरेंट एटम के लिए ई हाफ जो है डिफरेंट है। अब जब हमें ई हाफ, जो ई हाफ हमें मिल गया, इसको हम नोट कर लेंगे। इस ई हाफ को हम नोट कर लेंगे, जो हमारी एक टेबल होती है हाफ वेव पोटेंशियल की, जो टेबल होती है वहां से हम ई हाफ की वैल्यू को मैच करवा लेंगे। जिस एटम से हमारी ई हाफ की वैल्यू मैच करती है, जिस एटम से हमारी ई हाफ की वैल्यू जो है वो मैच करती है, मींस दैट इज आवर रिक्वायर्ड आइडिया अंडर ऑब्जर्वेशन, मींस दैट इज आवर रिक्वायर्ड आइडिया अंडर ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम अननोन स्पीशीज का पता कर लेंगे कि कौन सी स्पीशीज उसके अंदर प्रेजेंट है, कि कौन सी स्पीशीज इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। सो सिंपली जो है, यानी ये पोलैरोग्राफी जो है हमारी एक टेक्निक होती है विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द अननोन सॉल्यूशन और सब्सटेंस बाय ड्राइंग अ पोलैरोग्राफ बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल, between the current and potential, and dropping mercury electrode used as the electrode in this instrument, and dropping mercury electrode used in this instrument। अब थोड़ी सी इसकी हम समरी जो है वो ब्रीफली दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है, जिसको हम माइक्रोपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड जो है इसको हम माइक्रोपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। माइक्रोपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड इसको क्यों कहा हमने? ड्यू टू टू रीजंस, दो वजूहात की वजह से। जो नंबर वन, स्मॉल सरफेस एरिया, नंबर टू
सरफेस रिन्यूएबल कैपेसिटी। इस तरह हमारे पास जो टेस्ट सोल्यूशन है, टेस्ट सोल्यूशन जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट। हमारे पास जो टेस्ट सोल्यूशन है 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट। एक वो है इलेक्ट्रोलाइट अंडर ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रोलाइट अंडर ऑब्जर्वेशन यानी इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज। हमारे पास इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज क्या है, दैट इज Pb+2 सॉल्यूशन, Pb+2 सॉल्यूशन। और दूसरा हमारे पास क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट। टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं। एक वो इलेक्ट्रोलाइट जिसकी हम ऑब्जर्वेशन, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट अंडर ऑब्जर्वेशन। इधर हमारे पास क्या है, Pb+2 सॉल्यूशन है। और दूसरा जो हमारे पास क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट है, KCl। अब यहाँ पे जो मेन बात है जानने के लिए कि हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कंसंट्रेशन जो है 100 टाइम्स मोर लेते हैं, 100 टाइम्स ज्यादा लेते हैं देन Pb+2 सॉल्यूशन। यानी कि हम KCl जो है एक्सेस में लेते हैं। KCl क्या है, एक्सेस में लेते हैं। KCl सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जो है 100 टाइम्स मोर देन Pb+2 सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस का एक बहुत बड़ा रोल है। डिफ्यूजन प्रोसेस हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। जो हमारा Pb+2 है वो हमारा यानी बल्क से कहाँ जाएगा, बल्क से इलेक्ट्रोड सरफेस की तरफ जाएगा, ठीक है ना। मतलब है सॉल्यूशन है जिसमें हमारा Pb+2 जो है वो बल्क में प्रेजेंट है, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन या ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, और सरफेस और इलेक्ट्रोड सरफेस पे थोड़ी है ना। और इस प्रोसेस को कैरी करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा अप्लाइड पोटेंशियल है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा अप्लाइड पोटेंशियल है उसको हम क्या करते हैं, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। अब डिपोजिशन कब अकर करेगा, जब ये हमारा बल्क क्वांटिटी से जाएगा इलेक्ट्रोड सरफेस पे, जब ये हमारा बल्क क्वांटिटी से जाएगा इलेक्ट्रोड सरफेस पे। अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज नहीं करेंगे तो करंट नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज या चेंज नहीं करेंगे तो करंट नहीं आएगा। तो पोटेंशियल को इंक्रीज करना जरूरी है, तो पोटेंशियल को इंक्रीज करना जरूरी है। टू कैरी आउट द प्रोसेस वी इंक्रीज द पोटेंशियल ग्रेजुअली, टू कैरी आउट द प्रोसेस वी इंक्रीज द पोटेंशियल ग्रेजुअली। जब हम पोटेंशियल को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे पास वो जो प्लेरोग्राम आएगा, जब हम ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे कि जो इनिशियली जो है I इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, पॉइंट A और B है, फिर शार्प इंक्रीज है पॉइंट B टू C, एंड फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट। ऑप्शन ये प्लेरोग्राफ जो है आप देखेंगे A और B जो है इनिशियली I इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A टू B, यानी ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। फिर शार्प इंक्रीज हुआ B टू C एंड फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट। अब ये शार्प लाइन है मेरी, क्या होनी चाहिए था, एक वर्टिकल लाइन होनी चाहिए था। ये आइडियली अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो हम जो है वो नहीं लेते, इसके ई हाफ नहीं लेते। यहाँ हम इसलिए ले रहे हैं कि ये थोड़ी सी डिक्लाइन है, डिक्लाइन यानी डिक्लाइन, लेकिन डिक्लाइन का मतलब टेढ़ा है, इस वजह से हम जो है उसको लेते हैं, इसका ई हाफ लेते हैं। और ई हाफ हमने क्या कहा, क्या है ई हाफ, दिस इज द वोल्टेज एट विच डिपोजिशन इज अकर, दिस इज द वोल्टेज एट विच डिपोजिशन इज अकर। अब एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा आयंस मौजूद हों तो उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा आयंस या एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद हों तो उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफ सॉल्यूशन कंटेन मोर देन वन एलिमेंट प्रेजेंट वी नीड टू डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, क्या हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इफ सॉल्यूशन कंटेन मोर देन वन एलिमेंट प्रेजेंट वी नीड टू डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, क्या हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, नो। सो एट वन टाइम वी कैन डिटेक्ट मल्टीपल
ions are species with one experiment only, with one experiment only, यानी एक ही टाइम में हम बहुत सारे मल्टीपल यानी आयन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो ई हाफ हमने क्या कहा था, ये जो ई हाफ है, ई हाफ की वैल्यू होती है वो हमें क्या बताता है, हमने ये ई हाफ जो है वो ये कहता है कि ई हाफ जो है डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट होता है। तो जितने मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने मेरे पास नंबर ऑफ ई हाफ वैल्यू होंगे। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई हाफ वैल्यू। अब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ई हाफ वैल्यूज, मैं मान लेता हूं, देखिए सपोज मेरे सोल्यूशन के अंदर 3 आयंस प्रेजेंट है, हमारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर 3 आयंस जो हैं वो प्रेजेंट है। तो एक ही एक्सपेरिमेंट से हम मल्टीपल आयन को या मल्टीपल स्पीशीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जितने मेरे स्पीशीज होंगे उतने मेरे ई हाफ वैल्यू आएंगे। अब देख रहे हैं अगर 3 है तो 3 वैल्यू आएंगे। ये अब ये जो है आप देख रहे हो कि ये जो है ये ई हाफ जो है इसके एक 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 स्पीशीज का है या एक आयन का है, ये अलग वोल्टेज पे डिपॉजिट होना शुरू कर देगा, शुरू करेगा। अब ये अलग वोल्टेज पे डिपॉजिट होना शुरू करेगा और ये अलग वोल्टेज पे डिपॉजिट होना शुरू करेगा। तो जितने मेरे नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने मेरे नंबर ऑफ ई हाफ वैल्यूज होंगे। तो यानी हम मल्टीपल आयन जो है एक एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि करंट कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि जो सॉल्यूशन है टोटल 3 तरह के करंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर। नाउ करंट इन दिस सॉल्यूशन जो I है, I is equal to ID plus IM plus IC। ID डिफ्यूजन करंट, IM माइग्रेशन करंट एंड IC लिमिटिंग करंट या कन्विक्शन करंट। IC मींस कन्विक्शन करंट, IC मींस कन्विक्शन करंट। क्या होता है कन्विक्शन करंट जो है ये क्या होता है, दैट इज जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस। So this can also be produced by stirring a solution। अगर हम सॉल्यूशन को स्टीरिंग करेंगे तो ये स्टीरिंग से भी ये करंट पैदा हो सकता है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टीरिंग करंट। इसको लिहाजा इसको हम स्टीरिंग करंट भी कहते हैं। यानी आईसी का मतलब जो है आईसी मींस कन्विक्शन करंट, और कन्विक्शन करंट क्या होता है, दैट इज जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस। सो दिस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय स्टीरिंग अ सॉल्यूशन। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टीरिंग करंट। अगर विदाउट डिस्टरबेंस, बगैर डिस्टरबेंस के हम सॉल्यूशन को रख दें तो उसमें कन्विक्शन करंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर विदाउट डिस्टरबेंस हम सॉल्यूशन को रख दें तो उसमें कन्विक्शन करंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ डिफ्यूजन करंट। सो टू गेट आईडी डिफ्यूजन करंट, आईसी शुड बी एलिमिनेटेड, IC should be eliminated, and to eliminate IC, solution should be kept undisturbed, solution should be kept undisturbed। तो ये माइग्रेशन के जो कन्विक्शन करंट है इसको हम स्टीरिंग करंट भी कहते हैं। तो स्टीरिंग करंट को जो है हम क्योंकि सॉल्यूशन को अगर हम बगैर डिस्टरबेंस के रख देंगे तो हमारा स्टीरिंग करंट जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, माइग्रेशन करंट, इसको हम IM। माइग्रेशन करंट जो है क्या होता है, माइग्रेशन करंट इज जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। माइग्रेशन करंट जो है वो जनरेट होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, केटायंस एंड एनायंस towards their respective electrodes, towards their respective electrodes on the application of applied electric field। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे यानी पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, यानी जो माइग्रेशन करंट है दैट इज जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस मींस केटायंस एंड एनायंस टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइग्रेशन करंट को हम कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने केसीएल सॉल्यूशन एक्सेस में लिया था। केसीएल हमने एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट लिया है, केसीएल सॉल्यूशन इज एन एक्सेस, तो इसलिए तो हमने एक्सेस में लिया है। यानी 100 टाइम्स जो है मोर देन इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज,
to eliminate migration current. To eliminate migration current. Most of the migration current is carried by the ions of KCl solution. जो migration current होगा वो उसकी वजह से KCl solution की वजह से होगा. Most of the migration current is carried by the ions of KCl solution. अब जो net result of the above two processes is that the electroactive species carry only ID. The electroactive species carry only ID. So I is equal to ID. तो हमने migration current को भी रिमूव किया और migration current को भी खत्म किया, तो I is equal to ID. This is the diffusion current. This is the actual current which is measured by this polarography. अब हाँ, अब हम जाते हैं. अब हमने क्या कहा था कि I current जो है that is directly proportional है C naught minus C. अब ये C naught जो है, ये डायग्राम में देखें, C naught जो है, this is Pb plus 2 ions in the solution. यानी ये जो C naught है क्या है, this is Pb plus 2 ions in the solution. और C naught क्या है, C क्या है, C naught हमने क्या कहा था, this is Pb plus 2 ions in the solution. और C, this is the Pb plus 2 ions, this is the Pb plus 2 ions deposited on the surface of the mercury drop. Deposited on the mercury drop. Deposited on the mercury drop. Pb plus 2 ions deposited on the mercury drop. So I is equal to C naught minus C. So I is equal to K. प्रोपोर्शनलिटी को हमने खत्म किया, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो I is equal to K into C naught minus C. I is equal to K into C naught minus C. So when I is equal to ID, then C is equal to 0. So ID is equal to Kc naught. ID is equal to Kc naught, and this is the value of the diffusion current. And this is the value of the diffusion current. What is K? K is equal to D into N into A into F divided by del. What is D? Diffusion coefficient. D is diffusion coefficient. What is N? N is equal to, N is the number of electrons required to deposit 1 mole of electroactive species. Number of electrons required to deposit 1 mole of electroactive species. What is A? Surface area. A surface area. What is F? Faraday current. Del is distance of diffusion. Delta is the distance of diffusion. अब हम मान लेते हैं अगर हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन दी गई हो, डिफरेंट कंसंट्रेशन दी गई हो, तो कंसंट्रेशन और डिफ्यूजन करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा. एट कंसंट्रेशन C1 naught, at concentration C1 naught, ID1 is equal to KC1 naught. At concentration C2 naught, ID2 is equal to KC2 naught. So हम इनको डिवाइड करेंगे, KC1 ID1 divided by ID2 is equal to C1 naught divided by C2 naught. तो ये हमारा एक important relation है. So this equation is used for numerical purpose. ID1 divided by ID2 is equal to C1 naught divided by C2 naught. This is an important relation. So this is whole about polarography. अब इसकी एप्लीकेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशंस के अंदर भी. पोलैरोग्राफी जो है हमारी एक टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी अननोन सब्सटेंस को एस्टिमेट करते हैं. सो इट इज द टेक्निक बाय व्हिच वी एस्टिमेट a substance by plotting or drawing a polarograph between incident and potential. अब यूज फॉर क्वालिटेटिव एप्लीकेशन क्या है, फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट या एनालिसिस ऑफ द इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस. इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट्स या फंक्शनल ग्रुप. इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोएक्टिव वो होगा जो या तो इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल हो या इलेक्ट्रो ऑक्सीडाइजेबल हो. इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल या इलेक्ट्रो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस
elements या group. अब drugs analyzed by this technique, by this fluorography, drugs analyzed by this include chloramphenicol, nifedipine, amlodipine, vitamin K, and its derivatives, ketosterides, azo and diazo compounds. So this is about the about fluorography. यानी हमने ग्राफ ड्रा किया, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, which is called current voltage curve or fluorogram. This instrument is called fluorography and the graph obtained is called fluorograph. So these are the applications of this fluorography, and this is the end of this chapter, electrochemistry. Now in next lecture we will discuss about non-aqueous titration. What are non-aqueous titration we will discuss in our next lecture.